Variation of ionization therapy in modern periodic table. Before discussing the variation, first we will discuss what is ionization enthalpy. As the term suggests, ionization means एक neutral atom को ion में convert करना. And ion में convert करना basically for this term it is for cation. Means if we need to convert an atom to a cation, how we can do? Or how an atom changes into cation? By loss of electron. Positive charge कब आएगा? जब एक electron बाहर निकलेगा atom से. So when an atom loses an electron, and as you know that electrons are held strongly within the atom by the force of nucleus. Nucleus जो एक positive pull लगाता है बाहर वाले electrons पे, तो electrons सारे उस nucleus की तरफ attracted रहते हैं. तो एक attraction force से न्यूक्लियस होल्ड करके रखता है इलेक्ट्रॉन्स को. तो whenever we need to convert an atom, a neutral atom, into a cation, so what we need to do, हमें उस इलेक्ट्रॉन को उस अट्रैक्शन फोर्स से बाहर निकालना है. तो अब ऑलरेडी जो चीज अट्रैक्शन से स्ट्रांगली हेल्ड है उसको आपने रिमूव करना है. तो वी नीड टू प्रोवाइड सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी. उतनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी जितने एनर्जी से वो बाउंड है एक न्यूक्लियस के साथ एटम के अंदर. ठीक है. तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इज the amount of energy required to remove most loosely bound electron of an atom in gaseous state so as to convert it into a cation. ठीक है. gaseous state में होना चाहिए atom और ground state में होना चाहिए. ground state means कि वैलेंस शेल जो जिस ऑर्बिट में है अदरवाइज नॉर्मल स्टेट में, उसी स्टेट में. एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स जंप्स टू सम हायर एनर्जी लेवल. तो ऑलरेडी जो इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल पे होगा उसको आपने बाहर निकालना है, तो कम अमाउंट में एनर्जी चाहिए. ठीक है. तो डेफिनेशन में आपको ये टर्म मेंशन करनी जरूरी है. टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट. ये दो टर्म अगर आप मेंशन नहीं करते हो आयनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन में, योर डेफिनेशन विल बी रॉन्ग. So anyone who can define now the amount of energy required to remove most loosely bound electron from a gaseous atom in its ground state so as to convert it into a cation. So this amount of energy is called ionization energy or ionization enthalpy. And as it is the amount of energy which is provided to the atom during reaction, so the value of ionization enthalpy is positive. Because energy provide कर रहे हो आप तो positive energy होती है, तो साइन हमेशा positive आता है ionization enthalpy के लिए. अगर energy released होती है किसी reaction में in any form, then it will be given with negative sign. So this is always positive. And units for ionization enthalpy, kilojoule per mole it may be, or in electron volt it can also be you can say expressed. So there are two different units which are used for this ionization enthalpy value. Next we'll discuss about the factors affecting ionization enthalpy. अब एक एटम के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो इफेक्ट करेंगे इसकी वैल्यू को. तो let us now discuss about those factors. You can note down these factors, at least headings. Factors affecting ionization enthalpy. Symbol जो है बेटा ionization enthalpy का, that is IH कर सकते हो. Delta H is enthalpy change. I represent here for ionization enthalpy. IE can also be written. So factors affecting, first one is atomic size. Atomic size is, how we can define atomic size. Suppose this is the last electron or the last shell containing electron, and this is the nucleus. Yes. And this distance, ये जो linear distance है between the nucleus and the last or valence shell containing electron, this is called atomic radius. अब ये atomic radius जितना ज़्यादा होगा, means उतना ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के फील्ड से काफी दूर होगा. ऑब्वियसली अगर ये डिस्टेंस हायर है तो लार्ज साइज एटम्स के लिए ये डिस्टेंस ज्यादा होगी, और जितनी डिस्टेंस पे होगा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के फील्ड से उतना इजी होगा आपको इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना. तो लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड फॉर लार्ज साइज एटम्स. ठीक है. तो यहाँ आप मेंशन कर सकते हो IE is inversely proportional to atomic size.
ठीक है, आई जितनी ज्यादा साइज होगा एटम का उतनी कम एनर्जी चाहिएगी, जितना स्मॉलर होगा एटम उतना स्ट्रांगली ये न्यूक्लियस का फील्ड जाएगा और उतना हायर अमाउंट में एनर्जी आपको रिक्वायर होगी टू रिमूव दैट इलेक्ट्रॉन। तो एटॉमिक साइज एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी आर इनवर्सली रिलेटेड। सेकेंड, न्यूक्लियर चार्ज। Second factor that affects ionization enthalpy is nuclear charge. Nuclear charge, or simply you can say the number of protons present in the nucleus of an atom. Greater the number of protons, greater will be the attraction pull. जितने ज़्यादा positively charged protons nucleus के अंदर present होंगे, उतना strong pull outside electrons पे लगेगा. तो higher the nuclear charge, higher would be the ionization enthalpy. So IE is directly proportional to nuclear charge. NC I have written for short form nuclear charge. Third factor is shielding effect. This we have also done in chapter 2, structure of atom में भी हमने किया था ये. Shielding effect is actually शील्ड करना, मतलब इनर इलेक्ट्रॉन, जो इनर फील्ड शेल्स होती है, इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग चल रही है आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में, बट उससे पहले की जो शेल्स हैं ऑलरेडी कंप्लीटली फिल्ड है. दीज कंप्लीटली फिल्ड शेल्स और द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दीज इनर शेल्स, दे क्रिएट अ काइंड ऑफ रिपल्शन फॉर द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन. आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को वो रिपेल करते हैं और इस रिपल्शन की वजह से जो न्यूक्लियस का फोर्स जितना लगना चाहिए बाहर वाले इलेक्ट्रॉन, लास्ट जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, उतना नहीं लगता, जस्ट बिकॉज ऑफ द इनर कंप्लीटली फिल्ड शेल. तो जितनी ज्यादा अंदर नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा होंगी उतना ज्यादा ये न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कम लगेगा, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता जाएगा. तो दिस इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स टू द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, व्हिच यू कैन से प्रिवेंट्स द इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस टू दी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, पहुंचने ही नहीं देता. और जब इतना इफेक्ट बाहर इलेक्ट्रॉन्स तक नहीं पहुंचेगा तो ऑब्वियसली इट विल बी इजी फॉर एटम्स टू लूज इलेक्ट्रॉन. तो इसका मतलब यही हुआ कि जितनी ज्यादा नंबर ऑफ शेल्स एटम्स के अंदर प्रेजेंट होंगी उतनी उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी. तो एक तरह से हम रिलेट तो साइज से भी कर सकते हैं, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती है तो साइज भी बढ़ते हैं. ग्रुप में यही फैक्टर हम देखते हैं. व्हेन वी मूव डाउन अ ग्रुप, तो एक ग्रुप में सपोज हम फर्स्ट ग्रुप की बात करें, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम तक हम आते हैं, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इज लीस्ट. लिथियम के लिए सबसे ज्यादा है, सीजियम के लिए लीस्ट है. तो दैट इज बिकॉज सीजियम के पास इनर शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. तो दीज इनर इलेक्ट्रॉन्स शील्ड द लास्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस, you can say resulting in decreased ionization enthalpy. ठीक है, तो Z, अब शील्डिंग इफेक्ट के लिए हम एक थोड़ा सा फॉर्मूला हम लगाते हैं कि उसकी वजह से हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे निकालते हैं. तो दैट इज कॉल्ड Z इफेक्टिव. Z effective is called effective nuclear charge, which is equal to actual nuclear charge, which is equal to the number of protons minus shielding constant. Shielding constant or screening constant भी कहते हैं. This is represented by the symbol sigma. So this formula is used for calculations, but calculations are not in your syllabus. You just need to remember, with increase in inner number of electrons or inner completely filled shells, the effective nuclear charge on outermost electrons decreases, and that results in decreased ionization enthalpy. तो ionization enthalpy is also क्या होगी, इनवर्सली रिलेटेड होगी शील्डिंग इफेक्ट के कि डायरेक्टली होगी. जितना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा उतना आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी. तो इट इज इनवर्सली रिलेटेड टू शील्डिंग इफेक्ट. Z is the normal nuclear charge equivalent to the number of protons present in atom. Next, fourth factor, penetration effect. Beta factors note कर लेना, because generally if the question comes in 5 mark for this from this chapter, तो ये question आ जाता है कई बार, what is ionization enthalpy and what are the factors affecting it. तो penetration effect is the next factor. Penetrate करना मतलब
एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का एट न्यूक्लियस की तरफ पेनिट्रेट करना मींस उसके क्लोजली अट्रैक्टेड होना। तो उसमें से आपके पास इलेक्ट्रॉन्स की पॉसिबिलिटी क्या है, 4 ऑर्बिटल्स में वो होते हैं, आइदर इन s और p, d और n। तो इन सारे ऑर्बिटल्स की शेप्स अगर हम देखें तो s ऑर्बिटल्स आर वेरी मच सिमेट्रिकल इन शेप एंड ड्यू टू विच, और उसकी सिमेट्री भी इस तरह की है कि वो पूरी जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है वो न्यूक्लियर रीजन के आसपास ही होती है एज कंपेयर टू p, d और f। ठीक है, तो s orbitals are most, you can say they are maximum penetrated towards the nucleus, और सबसे ज्यादा न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है वो s इलेक्ट्रॉन्स पे लगता है, followed by p, then d and then। ठीक है, तो this is the, you can say, order of penetration। s electrons or s orbitals are most penetrated toward the nucleus, followed by p, d and f। So if outermost shell has electrons in s as well as in p, ठीक है, और आपको एक एटम के लिए इलेक्ट्रॉन s में से रिमूव करवाना है, दूसरी तरफ आपके पास ऐसा एटम है, मतलब इसके लिए एग्जांपल आप बेरिलियम एंड बोरॉन का ले सकते हो। बेरिलियम में 2s2 कंप्लीट है कॉन्फ़िगरेशन, बोरॉन में 2p1 स्टार्ट हो गया, तो बेरिलियम में से 2s2 में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना और बोरॉन में 2p1 को रिमूव करना, तो easier would be for boron, whereas the size of boron is smaller, तो होनी उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी हायर चाहिए बट एक्सेप्शनली लोअर है, बिकॉज बोरॉन में आप 2p1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो व्हिच इज इजियर एज कंपेयर्ड टू द रिमूवल ऑफ 2s इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये ऐसे एक्सेप्शंस हम अभी आगे वेरिएशन में पढ़ेंगे। तो ये इफेक्ट क्लियर हो गया, मोर द इलेक्ट्रॉन्स आर पेनिट्रेटेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, greater would be the force of attraction of the nucleus and difficult it would be to remove them। आप उसको उतनी ही डिफिकल्टी से रिमूव करोगे, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द पेनिट्रेशन इफेक्ट। For s electrons, ionization enthalpy is higher as compared to p, d or f। And the last factor is electronic configuration। Electronic configuration is very important while deciding the value of ionization enthalpy। Certain electronic configurations which have completely filled or exactly half filled configuration, मतलब अगर p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं तो p पे जो 3 इलेक्ट्रॉन जब आएंगे, you know the configuration can be shown like this। This is exactly half filled p orbital and d के लिए अभी हम p को अगर कंसीडर कर रहे हैं then it will be completely filled। तो इन दो कंडीशंस में अगर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं एटम्स में, then it is very difficult to remove electrons from such stable electronic configuration। ये स्टेबिलिटी क्यों है इनमें? बिकॉज ऑफ सिमेट्री, सिमेट्रिकल है, और साथ साथ इनकी जो एक्सचेंज एनर्जी दैट वी हैव ऑलरेडी डन इन चैप्टर 2, दो फैक्टर्स है जो ऐसी कॉन्फ़िगरेशंस को स्टेबलाइज करते हैं, सिमेट्री प्लस एक्सचेंज एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज जो होता है ऑर्बिटल्स में। तो इन दोनों रीजंस की वजह से ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑलरेडी मोर स्टेबल होती है एज कंपेयर टू इन बिटवीन जो भी स्टेट्स आ रही है कॉन्फ़िगरेशन। तो ऐसी कंडीशंस में इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी एज कंपेयर टू दी अदर नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो यहाँ एक पॉइंट लिख लो, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस लाइक एग्जैक्टली हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस लाइक exactly half filled or completely filled orbitals require greater energy to remove electrons। Next, successive ionization enthalpies।
सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन, सपोज जो मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है किसी भी एटम का, वो आपने रिमूव कर दिया. इट इज नॉट सो कि ओनली वन इलेक्ट्रॉन कैन बी रिमूव, बिकॉज अगर एक ही इलेक्ट्रॉन रिमूव करना पॉसिबल होता तो आयन सिर्फ केटायन वन चार्ज वाले ही पॉसिबल होते. बट यू नो दैट ट्राई पॉजिटिव केटायंस आर आल्सो फॉर्म ना. एल्यूमिनियम का 3 पॉजिटिव बनता है, या जो भी आप और भी इतने एटम्स देखते हो, 2 पॉजिटिव चार्ज मैग्नीशियम cation is also formed, calcium ion is also present. तो ये एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो रिमूव करने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी जितना चाहिए, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी. उसके बाद आपको सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, देन इट विल बी कॉल्ड एज सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी. थर्ड के लिए थर्ड हो जाएगी. तो इन सबको कलेक्टिवली एक टर्म हम दे देते हैं, सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी. नाउ एनीवन कैन टेल इफ ऑलरेडी यू हैव you can say prepared a cation, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया आपने. सपोज हम कैल्शियम की बात करते हैं, कैल्शियम में टोटल 20 इलेक्ट्रॉन्स है, आउटर मोस्ट शेल में उसके पास s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है. इफ वी हैव रिमूव दैट फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उसके बाद आपको सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तो उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट फर्स्ट से ज्यादा होगी या कम होगी? ये एक्चुअल में अदरवाइज हम जनरल कहें तो ज्यादा होगी, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन हटाने के बाद ऑलरेडी अब पॉजिटिव आयन बन चुका है. एक पॉजिटिवली चार्ज आयन में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज काफी बढ़ जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन का नंबर इलेक्ट्रॉन से एक्सीड कर चुका है. तो उस केस में आपको सेकंड जो इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करवाने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए. बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं, जैसे हम कैल्शियम की बात करें, तो कैल्शियम का वो सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद जो अब बचा है कॉन्फ़िगरेशन, वो एग्जैक्टली आर्गन जैसा. तो whenever possibility is there to form a more stable configuration, then that amount of energy will be decreased. तो ये तो डिक्रीज इंक्रीज चलता रहता है. बट इन जनरल इफ इट इज आस्क्ड, ये आपसे एक जनरल पूछ रहे हैं कि एक ट्रेंड क्या है कि सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी के कंपैरेटिवली क्या होती है, तो वैल्यू विल बी हायर. बट सम केसेस यू कैन सी वेयर द वैल्यू विल बी लोअर जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन व्हिच विल बी अचीव्ड आफ्टर लॉस ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन. तो ये सब चीजें आपको डिसाइडिंग फैक्टर्स होती है जब अगर कंपैरिजन करने होते हैं. So next we'll move to the variation in ionization enthalpies in period as well as in group. First one, variation in IE in a period. So to understand this, I will just draw a graph. So if we draw a plot between the atomic number and ionization enthalpy values for second period elements, what we get? This type of curve. Otherwise, एक जनरल ट्रेंड क्या देखते हैं हम, अगर हम आयनाइजेशन एंथैल्पी के फैक्टर्स देखें, सिर्फ एटॉमिक साइज को कंसीडर करें, तो एज एटॉमिक साइज इज हाईएस्ट फॉर लिथियम एंड लोएस्ट फॉर दैट फ्लोरीन. ठीक है, अगर हम एक पीरियड की बात करते हैं तो. बट वैल्यूज उस सेम ट्रेंड में नहीं है, बिकॉज यू कैन सी देयर इज अ डिप एट दिस बोरॉन. दिस इज लिथियम, दिस इज बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, दिस नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन. ठीक है, तो आपको ये दो जगह पे जो डिप मिल रहा है, बोरॉन की वैल्यू जितनी होनी चाहिए थी उससे कम है. नेक्स्ट ऑक्सीजन की वैल्यू नाइट्रोजन से हायर होनी चाहिए थी, बट हियर इट इज लोअर. तो ये जो दो एक्सेप्शंस आ रहे हैं फर्स्ट पीरियड सेकंड पीरियड एलिमेंट्स में, दैट इज ड्यू टू टू रीजंस दैट वी हैव ऑलरेडी डन. कि एक रेगुलर ट्रेंड आपने सबसे पहले लिखना है, व्हाइल मूविंग लेफ्ट टू राइट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी increases. Reason, the atomic size decreases from left to right. So size decrease होने के साथ इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफिकल्ट होता है. तो फर्स्ट पॉइंट यू विल राइट दिस जनरल ट्रेंड. बट एक्सेप्शंस, बेरिलियम हैज स्लाइटली हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन बोरॉन, और इसको रिवर्स कर दो, बोरॉन हैज स्लाइटली लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन बेरिलियम. एंड सेकेंडली, ऑक्सीजन हैज lower ionization enthalpy than nitrogen. Anyone who can tell the reason? Yes, Gurpreet. For beryllium to boron. Because boron there is half-filled orbitals. Beryllium electronic configuration 1s2, 2s2. Boron has electronic configuration 1s2, 2s2, 2p1.
So here you will see the penetration factor where, or you can also see the stability of configuration. 2s2 orbital is completely filled. You need to remove one electron from this completely filled s orbital. So it will require a higher amount of energy. Secondly, penetration effect of 2s orbitals will be higher as compared to 2p. So 2s is more penetrated towards nucleus, so large amount of energy is required for beryllium as compared to boron. दूसरा रीजन मतलब दोनों चीजें कंबाइन करोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो ऑलरेडी यहाँ 2s2 है, कंप्लीटली फिल्ड है, बट 2p1 में एक ही इलेक्ट्रॉन है p में, एंड दैट इज उसको लूज करने के बाद ये ज्यादा स्टेबल होगा बिकॉज 2s2 इज नाउ कंप्लीटली फिल्ड. ठीक है, तो by just looking all those factors which we have discussed right now, उन factors में से जो आपको यहाँ suitable लगता है, you will apply that factor. But it's very important to mention electronic configuration whenever it is asked to give reason related to periodic trends. तो आपको configuration के साथ ही explain करने हैं. It's very easy when you write configuration, आपके सामने आ जाएंगे reason. ठीक है, तो reason क्या हुआ? More penetration effect of 2s orbital. Secondly, completely filled 2s orbital. So it is easier to remove this 2p1 as compared to this electron. Now second exception जो हमें मिला यहाँ पे nitrogen and oxygen में, that is nitrogen has electronic configuration 1s2, 2s2, 2p3, and for oxygen it is 1s2, 2s2, 2p4. Now anyone who can tell the reason? दोनों में इलेक्ट्रॉन्स 2p में से रिमूव करवाना है, नाइट्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन का भी. नाइट्रोजन इज एग्जैक्टली हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, और इस एग्जैक्टली हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन में जो ज्यादा स्टेबिलिटी है, दैट स्टेबिलिटी रिक्वायर्स ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्योंकि आप स्टेबिलिटी को खत्म करने की मतलब अनस्टेबिलिटी की तरफ लेके जा रहे हो एटम को. और ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद वो स्टेबल हो जाएगा बिकॉज नाउ इट विल बी exactly half filled. So the reason here is nitrogen has already stable configuration as exactly half filled p orbital, whereas oxygen has one paired electron in its 2p orbital. That paired up जो electron जो हुआ है वो easily remove कर सकते हो, और after removal of that electron oxygen will have more stable configuration of 2p3. but still ये atoms ऐसे हैं जो इतने ज्यादा electropositive है नहीं, values तो इनकी known है, but hardly these atoms form cations, but still their values are known, quite high values है, तो normally ये cations reactions में नहीं बनाते ये atoms. Clear हो गए दोनों exceptions? थर्ड जो आपको मिलेगी एक वैल्यू की जो नोबल गैस एटम्स होंगे, ये तो हर एक नोबल गैस एटम के लिए है कि these atoms have very high ionization enthalpy values because of completely filled stable configuration. So this is the reason only for noble gas atoms. Clear? Next we see the trend in or variation in a group. How ionization enthalpy values vary in a group. For example, if we consider first group, number of shells यहाँ पर 2 है, number of shells 3, 4, 5, 6. With increase in number of shells, the size of atom is also increasing. So we will consider two factors here. दो factor कौन से होंगे? एक तो size बढ़ रहा है, तो size is continuously increasing while moving down a group. So with increase in size, ionization enthalpy value will decrease. तो IE जो है यहाँ पर decrease होती है ग्रुप में, और ये जनरल ट्रेंड है, इसमें कोई एक्सेप्शन आपको यहाँ नहीं मिलेगा because number of shells are increasing. So with increasing number of shells, shielding effect is also increased. So effective nuclear charge decreases. Note down this reason why ionization enthalpy increases down a group. While moving down a group, atomic size increases and number of shells increases, resulting in
decrease resulting in decrease in effective nuclear charge. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और Z इफेक्टिव भी कर सकते हो शॉर्ट फॉर्म में, Z लिख के उसके साथ सब्सक्रिप्ट इफेक्टिव EFF भी लिख दो, बहुत है. डिक्रीज्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. Hence ionization enthalpy increase. Ionization enthalpy, sorry, decrease. Group में downward decrease will. Ionization enthalpy values will decrease. So this is all about ionization enthalpy and its variation.